Hello everyone, good morning. So it's Saturday morning, and today we will discuss one more company. So ये company also from the power sector, the yes high voltage. This is very interesting company and building very interesting product. So first let's go through that company, what they are building and what is the company is doing. So this is a power ancillary companies in terms of the power transformer where they are providing the boosting in the power. So wherever the grid works and where is the power transformer comes, the step up or step down power transformer, they require the boosting. So this boosting is in high demand, and this is the this company is competing with very MNC companies like Siemens, G. So we can see like this is the boosting which is installed on top of transformer. So the company is building that. So this is their product, OIP condensation boosting and drip and RSA condition boosting. So this is the oil implicated paper consider, and they are now entering in the new product of RIP and RIS condensation boosting. So this is their new product, and they are establishing their new plant, and the capex is already going on, and it might be completed in this quarter only, this Q4 and I think, and production will start in this Q1. We will see that as well, but the production is also start for this new product facilities. If we see the high level, the capacity installed 40,000 plus बुशिंग इंस्टॉल ग्लोबली. तो ये लोग जो बुशिंग बना रहे हैं तो उसका कैपेसिटी इनके पास बहुत अच्छा है, और दिस कंपनी इज लोकेटेड इन वडोदरा. एंड वडोदरा आप सबको पता है कि ट्रांसफॉर्मर हब है यहाँ. देर आर मैनी अदर ट्रांसफॉर्मर कंपनीज लाइक द वोल्टेम्प, सिल्चर, एटलांटा. सो देर आर मैनी ट्रांसफॉर्मर कंपनीज. यहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, और उन कंपनीज को दिस सप्लाइड दिस बूसिंग, एंड दे आर डूइंग वेरी वेल एक्सपोर्ट एज वेल. तो ये लोग का एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा चल रहा है. वी कैन सी दैट. But company is very fantastic and good. But this company is in the SME section, so we have to buy the company in the lot. So I think one lot would be in 1,20,000 या 30,000 के सराउंडिंग अभी है, जो प्राइस इंक्रीज जस्ट ये हुआ दिस वीक. तो let's see the other details of the company. So P is 50, but if we calculate the forward P with the uh, this Q4 estimated result, तो ये इतना महंगा नहीं है, but its growth is also supporting this. So and लास्ट हम देख सकते हैं कि ये वो रिसेंटली लिस्टेड है, एंड इट हैज़ गिवन गुड परफॉर्मेंस. बट लास्ट जुलाई से अभी तक ये सेम ही रेंज में, सेम रेंज बाउंड इज ट्रैवलिंग. एंड अगर हम पी रेशियो भी देखें तो उसका भी इतना बड़ा एक्सपेंशन नहीं हुआ है. सो इट्स द कैंडिडेट ऑफ पी एक्सपेंशन. तो हम दे सकते हैं ये. Let's see the sell. So quarter on quarter, they are going good growth. Operating margin, it's better. So its business has that good pricing control, and they are doing good control in that. अगर हम आगे भी कुछ देखें तो नेट प्रॉफिट ऑलवेज राइजिंग, एपीएस. हम ईयर ऑन ईयर देखते हैं, क्योंकि कंपनी कॉन कॉल और क्वार्टरली नहीं करती, अभी एसएमए सेक्शन में है इसलिए. बट अभी ये कॉप क्यू फोर के बाद इसका फिर से कॉन कॉल आएगा, एंड दैट वुड बी इंटरेस्टिंग. वी विल अपडेट, उसकी अपडेट भी विल डू वन वीडियो अबाउट दैट, स्मॉल वीडियो, कि उसका ग्रोथ कैसा है क्या है. बट कंपनी इज फेबुलस. लेट्स सी द ग्रो दिस net profit growth, this EPS growth. So it's doing in well direction. अगर हम यहाँ पे इसका सेल्स ग्रोथ भी देखें तो
लास्ट ईयर 38% का सेल्स ग्रोथ था। और इस ईयर भी अभी तो 3 क्वार्टर में इसका 193 है। अभी एवरेज 1 क्वार्टर का लास्ट क्वार्टर का ही मैं पकड़ूँ 100 रेवेन्यू इसमें ऐड होगा, तो इसका देख लीजिए आप 300, सो 150 से 300, एटलीस्ट 100% का जंप है रेवेन्यू ग्रोथ में, सेल्स ग्रोथ में। तो आप देख सकते हो कि 100% तो कुछ नहीं तो छोड़ दीजिए कि 60-80% का ग्रोथ भी कर आराम से कर सकती है कंपनी। तो ये ग्रोथ पे कंपनी हाई पेस ग्रोथ पे है, और इसका नया फैसिलिटी ऑन हो जाएगा तो द कंपनी इज डूइंग फेबुलस। वेरी लिमिटेड डेट है इसके पास। कैपिटल वर्क अभी 12 करोड़ का इस क्वार्टर में दिखा रहा है, ये सितंबर का है। लेट्स सी। अगर तो ये इंसाइट्स में भी हम देख सकते हैं कि क्या है इसका। सो एनुअल यूजिंग का कैपेसिटी क्या था, 6,000 लास्ट ईयर, तो अभी मार्च में 10,000 का है। और वहाँ पे हम देख रहे थे कि क्यूमुलेटिव इंस्टॉल 40,000। इनका कुछ नया आ रहा है, ये देखो, ये RIS का है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न इज ऑल्सो नाइस, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। We can see the DIA and a little bit FI, and the people are there. So that's fine. Now we can see the summary here, AI summaries as well. That gives you the consolidated summary, उनका कौन कॉल में क्या हुआ, लास्ट ईयर में उनका क्या गाइडेंस था, तो वो सब हम देख सकते हैं यहाँ पे। तो रेवेन्यू ग्रोथ देखिए लास्ट ईयर का, H1 का, ये H1 का है, अभी H2 का वो देंगे तो वो 6-6 महीने का रिजल्ट देते हैं। अभी ये डिमांड एनवायरनमेंट, सो मल्टी स्ट्रक्चरल डिमांड है। तो ये पावर और ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, सो ऑल जो कैपिटल गुड्स कंपनीज है, और आइदर ये है जो ट्रांसफॉर्मर कंपनीज है, ट्रांसमिशन कंपनीज है, केबल्स है, ट्रांसफॉर्मर, तो ये सब में अभी बूम चल रहा है ड्यू टू द पावर डिमांड एंड राइजिंग पावर डिमांड्स। आप पकड़ लीजिए सोलर इंस्टॉलेशंस है, कैपेसिटी इंस्टॉलेशंस है, तो दैट आल्सो रिक्वायर्ड विंड, सोलर, हाइड्रो, they all require a transformer, cables and transmissions. Now the data center theme is working, so data center के लिए भी there are immense power की need है, और उसके लिए भी you need the grid, you need set up this transformer, this boosting, everything. एंड ये अकेले इंडिया में नहीं हो रहा है, ये दिस सिमिलर थिंग्स इज हैपनिंग इन यूएस एज वेल। तो यूएस में जो इतने सारे डेटा सेंटर बन रहे हैं, तो उसके लिए भी उनको ये सब चाहिए, तो दे आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग टू द यूएस एंड दैट। सो हियर वी कैन सी दैट। तो ये लोग अभी यहाँ पे बोल भी रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मर डिमांड इज नॉट गोइंग टू स्लो डाउन इन 6 to 7 years। तो ये साइकिल तो चल ही रहा है। अगर आप देखेंगे कि सिल्चर का स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, सिल्चर आई हैव इन्वेस्टेड सिंस लास्ट 4 to 5, और उसका मेरा 5-6 गुना पैसा बन गया है सिल्चर में। तो इट्स डूइंग फंटेस्टिक। आई वाज इन्वेस्टेड इन वॉल्टेम एज वेल, बट मैंने वो एग्जिट कर लिया, बट सिल्चर इज स्टिल आई एम होल्डिंग एंड इट इज डूइंग फेबुलस। सो आप देख लीजिए एटलांटा इलेक्ट्रिकल जो रिसेंटली लिस्ट हुआ था, दैट इज ऑल्सो डूइंग फेबुलस। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स हम देख सकते हैं कि RIP कंटिन्यूज टू बी मोर देन 80%। सो OIP एंड एक्सपोर्ट ड्यूरिंग H1। सो ये है तो the question would be there, like why transformer OEMs are not doing backward integrations in the boosting। वो लोग खुद ही boosting क्यों नहीं बना रहे जैसे लगे। A gateway to heart transformer, it's highly critical। तो ये component जो है boosting का वो highly critical, it is not, it's required the high tech technology। और ये टेक्नोलॉजी इन्होंने स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है उससे एक्वायर्ड की है, उनके साथ ही ये लोग काम कर रहे थे, बट नाउ दे आर वर्किंग इंडिपेंडेंटली, एंड इट्स a 2-3% ऑफ रेवेन्यू। सो मेकिंग आउटसोर्सिंग का सेंस ज़्यादा बनता है, रादर देन दे विल गो इन द बैकवर्ड इंटीग्रेशन एंड स्टार्ट बिल्डिंग द बूस्टिंग। तो इनका एग्जिस्टिंग प्लांट है वो, ये ग्रीनफील्ड प्लांट की मैं जो बात कर रहा था कि ग्रीनफील्ड फैसिलिटी IPO फंडेड है। तो ये जो बना रहे हैं वो लोग 245 kV से 50
550 केवी का। और ये जो 1000 करोड़ का 100 करोड़ का जो कैपेक्स किया है, तो ये कॉमर्शियल कब हो रहा है कि कॉमर्शियल प्रोडक्शन गाइडेंस गिव लेटर बाय सेकंड हाफ। तो ये सेकंड हाफ अभी चल रहा है। तो अभी ये बोल रहे हैं बाय सेकंड हाफ ऑफ 26-27, तो FY 27 में ये चालू हो जाएगा। इक्विपमेंट इंस्टॉलेशन एंड ट्रायल तो चल ही रहा होगा अभी फेब मार्च में। फिर ये लोग रैंप अप करेंगे 30-35% फुल्ली यूटिलाइजेशन की तरफ। बट इट्स गुड, जो आईपीओ के लिए पैसा उठाया था वो पैसा इन्होंने डाला है न्यू कैपेक्स में, और वो दे आर स्टार्टिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट फैसिलिटी। सो इनका बोलना है कि 600 to 700 करोड़ रेवेन्यू शुड बी पॉसिबल विदाउट एनी मच कैपेसिटी। तो अभी इनको फ्यूचर में डालने की जरूरत है, जो अभी लेटेस्ट कैपेक्स डाला है तो उस कैपेक्स से इनका काम हो जाएगा ग्रोथ के लिए, आगे की ग्रोथ के लिए। तो स्टडी कीजिए इसको, आप लोग आगे भी इसको स्टडी कीजिए, हाउ इट्स प्रोडक्ट, हाउ व्हाट इज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी कर सकते हैं, और इसमें इसका प्रोडक्ट अच्छा ही है। एंड ये जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल सेक्शन है, पावर सेक्शन, वो अच्छा कर रहा है। ये लोग एक कंपनी में भी 50% इक्विटी एक्वायर किया है, सुकृत इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो पुणे की, क्वालिटी पावर इक्विपमेंट के साथ, पार्टनरशिप के साथ। सो ये कुछ कर भी रहे हैं, और मैनेजमेंट इज गुड। केशा इज एमडी, ही इज डूइंग गुड एंड क्लीन पर्सन। सो मैनेजमेंट पे भी वी कैन पैट ऑन दैट। एंड अभी तो मोर देन 300 करोड़ एग्जीक्यूशन टाइमलाइन 1 to 5 years। तो अभी जो 1-2 साल का तो इनके पास ऑर्डर है ही, तो वो एग्जीक्यूशन का कोई उनको है नहीं। और अभी जो नया फैसिलिटी ऑन बोर्ड हो रहा है उसके साथ भी इनके पास ऑर्डर्स है, तो दैट इज़ गुड। तो काम तो है इनके पास बहुत, तो काम का कोई है नहीं ना। सप्लाई चेन का रिस्क हो सकता है, बट दैट्स फॉर ऑल कंपनीज राइट। अगर कुछ प्लस माइनस होता है देन इट वुड बी इफेक्ट। देखो कंपनी का ग्रोथ एम्बिशंस क्या है, एंड कॉन्फिडेंस क्या है मैनेजमेंट का। कंपनी लाइक यस कैन एस्पायर टू हैव एटलीस्ट 8x to 10x द रेवेन्यू इन नेक्स्ट। हर साल उसका रेवेन्यू डबल करने के बात कर रहे हैं ये लोग। सो हमने वो सेल्स ग्रोथ भी देखा, वो 80-100% ज़्यादा है। एंड वाइल नॉटिंग दैट दे आर ओनली अराउंड, तो उनका मार्केट सेट भी 1% है। तो अभी आगे इफ यू थिंक अबाउट द मार्केट, तो दे कैन एक्सपांड इफ यू कैन टेक 2% 3% है, अगर 5% का भी कंपनी बन सकता है तो वो यूज फॉर दैम। तो इट्स गुड बैड। एंड तो स्टडी कीजिए इसको। और अगर कोई अपडेट्स है कंपनी का तो वो भी वी कैन आस्क सम एआई टूल टू फर्दर व्हाट इज अपडेट। तो इसका कोई लेटेस्ट न्यूज़ होगा कि न्यू कैपेक्स के प्रोडक्शन का स्टार्ट का, अगर कुछ सबमिशन किया होगा तो वी विल गेट इट। तो ये अप्रैल का था टाइमलाइन। तो ये ऑलमोस्ट रेडी, अभी प्रोडक्शन स्टार्ट कॉमर्स प्रोडक्शन कॉमर्स इन सेकंड हाफ ऑफ। अभी ये लोग सेकंड हाफ का बोल रहे हैं। कंपनी स्केलिंग एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी फॉर बूस्टिंग फ्रॉम 6000 से 10,000 यूनिट फॉलोइंग द कमीशन ऑफ न्यू फैसिलिटीज। तो एटलीस्ट 40% का ग्रोथ होगा उनका, वॉल्यूम ग्रोथ जो बूसिंग बना रहे हैं उस पर। अभी रिसेंटली इनके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ है। कोई चाइनीज फर्म से इन्होंने ऑर्डर किया था मटेरियल, और उसका फिशिंग फ्रॉड हुआ है कि सेम एंटिटी और साइट और एवरीथिंग दे हैव
जो फिशिंग होता है कि वो लुक्स एंड लाइक्स उसका लिंक्स होता है वो, तो इन्होंने पेमेंट कर दिया उस पे, और ये 2 CR का वेरी स्मॉल अमाउंट, बट उन्होंने इसका कंप्लेंट भी डाला है साइबर क्राइम में और इसका हो चल रहा है। तो 35 CHZ से ये कंपनी ग्रोथ कर सकती है, और इसका सो इट्स मस्ट स्टडी एंड वॉच। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।